دن قائم کیا کہ آج کے دن ہم اپنی منادی غیر اقوام میں لے کر جائیں. سبوں کے لیے یہ دن تھا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں خادمین کے ساتھ ہم خدا کے پیغام کو غیر اقوام میں لے کر جائیں. اور میں صبح سے شام تک اس بات کو جانتا رہا, ہمارا گروپ بھی ہے اور میں دیکھتا رہا کہ کوئی ایسی بات ہوگی کوئی ایسی. اور میں نے کیا کیا, میں نے بیٹھے بیٹھے صبح سرحد کہ اپنے دوستوں کو جو میرے دوست تھے مسلم بھائی تھے, میں نے ان میں پشتوں میں پیغام دیا. کرنتھس کی کتاب سے میں نے پیغام دیا اور محبت کا وہ پیغام میں نے انہیں دیا. اور میں نے کوشش کی کہ ہمارا وہ جو مقصد ہے جو آج کا دن طے ہوا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے. اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا, ہمارے لوگوں نے آپس کے تکرار, آپس کی تنگئی, آپس کی باتیں اور آپس کے کام کاج میں ہی وقت گزار دی. اور پھر میں رات کو اس بات پر سوچ رہا تھا کہ منادی ایک بہت بڑا عمل ہے. منادی میں ہم خداوند یسوع کی شخصیت لوگوں کے آگے رکھتے ہیں اور منادی کے ذریعے ہم اس خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے عجیب سی محبت دی اور اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم سب بچ جائیں. اگر ہمارے اعمال بھی درست نہیں ہے تو ایمان سے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں اور ہماری امید یہ ہو کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ ہوا میں اڑا لے گا اور ہم بچ جائیں. اور اسی ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع نے ہم سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. ہم اسی بات پر چل رہے ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا ایمان اس بات پر کمزور بھی ہے. کمزور کیوں ہے؟ اب جو مسیح سنیے, اب سنیے میری بات, بڑا اچھا مقصد ہے. دیکھیں ہمارا آج بڑا اچھا مقصد میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے. میں آپ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں. مانا کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہے لیکن ہم ایمان سے بچ جائیں گے. رومیو کی کتاب میں پولس رسول کہتا ہے کہ شریعت اعمال سے ہمیں نہیں بلکہ ایمان سے ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ تم بچ جاؤ گے. اور ایمان یسوع پر ہونا ہے. جس کا شریعت پر ایمان ہے وہ شریعت کے ماتحت رہ کر اپنے اعمال سے بچے گا, لیکن جس کا یسوع پر ایمان ہے وہ یسوع. اب یسوع کے جو پیروکار ہیں ان کا ایمان یسوع پر کیسے, میں آپ پر یہ ظاہر کرنے لگا. ہم ملاکی نبی کی کتاب دیکھتے ہیں. ملاکی نبی کی کتاب دیکھیں, جنہوں نے بائبل لی ہے وہ ملاکی نبی آخری کتاب ہے پرانے افسانے, اسے ذرا دیکھیں. وہاں پر ایک آیت ہے دوسرے باب کی 13ویں آیت, وہاں پر آپ کے لیے ایک خوبصورت بات لکھی. آپ سنیے, جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے اندر بڑے ایمان کا ایک اثر رکھتے ہیں وہ سنیے. لکھا ہوا ہے ملاکی نبی میں 13 باب میں کچھ یوں لکھا ہے, پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظروں کو خوشی سے قبول کرے گا. نہ تمہارے ہدیوں کو اور نہ تمہارے ہاتھ کے نذرانوں کو خوشی سے قبول کرے گا, کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں اس کے سبب سے خدا کا مذبح, خدا کی بارگاہ بھری ہوئی ہے. خدایا یہ کر دے, خدایا وہ کر دے, خدایا میں مر گیا ہوں, خدایا میرا پیر ٹوٹ گیا ہے, خدایا میرے بدن میں درد ہے, خدایا کھانے کو نہیں, خدایا دولت نہیں, خدایا آلو پیاز ٹماٹر نہیں. ان باتوں سے آپ کی آو نالا سے خدا کا مذبح کیا ہے, بھرا ہوا ہے. اور کہتا ہے کہ میں تمہاری نظروں کو اور تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں
तुम्हारे क्या है? अमाल ऐसे हैं। ईमान में तुम हर वक्त दुआ में खुदा के आगे झुकते हो, तुम आकर खुदा के आगे अपनी दरख्वास्तें रखते हो, तुम खलवत में बैठकर पुशीदगी में बैठकर अपने दिल की ख्वाहिशें रखते हो। सुनिएगा, और तुम बहुत से बड़े बड़े दावे करते हो, ईमान के बड़े बड़े दावे, कि मैं यीशु पीछे क्या करूंगा? जान दे दूंगा, मैं यीशु के लिए ये करूंगा, मैं खुदावन का प्रचार कर रहा हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ। हम ईमान से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हमारे अमाल हमें खुदा की बारगाह में, खुदा की तरफ, जब हम ईमान से इन चीज़ों को अंदर नहीं रखते तो फिर ईमान भी हमारा डावाडोल हो चुका है। फिर हम ईमान से भी नहीं बचेंगे, अमाल से भी नहीं बचेंगे, तो फिर हम कैसे बचेंगे? तो किताब मुकद्दस में पौलुस कहता है कि तुम ईमान से बच जाओगे अगर तुम्हारे ईमान दुरुस्त नहीं भी है। तो जो लोग, जिन घरानों में खुदावन यीशु के लोग पैदा हुए और खुदावन यीशु पर वो ईमान रखते हैं, उनकी ईमान के वसीला क्या होती है? जिंदगी तब्दील हो जाती है। सुनिए, उनकी ईमान के वसीला क्या होती है? जिंदगी तब्दील हो जाती है और वो कोई गलत काम नहीं करते। अब एल्डर साहब को देख रहे हैं, जब वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे तो वो अपनी दुनियावी कामों में डट कर लगे रहते, वो कोशिश करते थे, गालियां भी निकालते थे, बुरे काम भी करते थे, कभी कभी नशा भी कर लेते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु पर ईमान लाए और यीशु के अंदर आए उसकी जिंदगी में, तो ये बातें उन्होंने छोड़ दी। हालेलुया! ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आए और उन्होंने इन बातों को क्या किया? छोड़ दिया। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम अच्छी जिंदगी का इजहार करना शुरू कर देते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? मसीह लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं, ईमान के वसीले वो बचेंगे। फिर उनकी जिंदगियों में बुराइयां क्यों? फिर उनकी जिंदगियों में गुनाह क्यों? फिर उनकी जिंदगी में ऐसे तकरार, हसद, बुराइयां और ना बोलने की हद और लेट आने की हद, ये सब बातें, इबादत ना करने की वजह, ये सब बातें उनकी। यकीन माने, मैं सोशल मीडिया पर बैठा हूँ, लोग मेरी आवाज यहाँ पर भी सुन रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मैं जब दुआ करता हूँ तो लोग उस दुआ को नहीं सुनते, और जब मैं कोई तस्वीर सेंड कर देता हूँ तो वो उस पर रिमार्क्स देते हैं, वो भेजते हैं मुझे, पादरी साहब आपने बहुत अच्छी तस्वीर भेजी, उस पर बहुत अच्छा। और मैं जब उस पर दुआ करता हूँ तो कोई एक शख्स भी मुझे नहीं कहता कि खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। लोग इन बातों को सुनते नहीं। मैं पैगाम देता हूँ, लोग मुझे लाइक नहीं दे सकते क्योंकि वो इसको पसंद नहीं करते। फिर भी कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, फिर भी कहते हैं कि ईमान से हम बच जाएं। कैसे बचेंगे? जबकि खुदा का कलाम मलाकी नबी की मार्फत कहता है कि मैं तेरे आओ नाले से, मैं तेरे उस आवाज से, तेरी उन दरखास्तों से क्या हूँ? तंग हूँ, क्योंकि तेरे ईमान के सबब से ऐसा है। जब हम मसीह हैं, जब हमने यीशु को कबूल किया तो यीशु में तो कोई ऐसी बातें नहीं थी ना। मुझे भाई गफूर ऐसे ही है ना, जब हम यीशु में हैं, हम सभी यीशु में हैं, बहुत सी कलीसियां यहाँ पर भी सुन रहे हैं लोग, जब हम यीशु में हैं तो यीशु की आदतें भी होनी चाहिए। ईमान के वसीला यही होता है कि हम में यीशु की वो जिंदगी आ जाती है, हम एक नई जिंदगी जाहिर करते हैं, नई इंसानियत जाहिर करते हैं, नई शख्सियत जाहिर करते हैं, और रूहुल कुद्दस के जरिए हम ना ही किसी को गाली निकाल सकते हैं, ना ही किसी पर तकरार कर सकते हैं, ना ही किसी की ऐबजोई कर सकते हैं, और ना ही कोई बुरा काम कर सकते हैं। लेकिन हम हैं मसीह, ऐसे नहीं हैं हम मसीही, लेकिन ऐसे नहीं है। तकरार बराए तकरार, कुछ बुरी बात, कोई अच्छी बात, हम इसी बातों में लगे हैं और ईमान की दौड़ में हम कतई नहीं हैं। और मलाकी नबी की किताब में कहता है, मैं तेरे अमाल के सबब से, तेरे आओ नाला से तंग आ चुका हूँ, तेरी वो दरख्वास्तों से मेरा मज़बा भरा हुआ है। वहां पर इतनी दरख्वास्तें हैं, लोग कहते हैं मैं इस बीमारी में हूँ, लोग कहते हैं मैं इस दुख में हूँ, लोग कहते हैं खुदावन कमी हो गई, खुदावन घर चाहिए,
खुदावन गाड़ी चाहिए, खुदा बाप हम पर पैसों की कसरत कर दे, हमें मशहूर कर, अच्छी शख्सियत दे। हमारे घरानों में अच्छी औलाद का कोई नहीं कहता, हमारे घरानों में खुदावन मुझे दुआगो जिंदगी दे कोई नहीं कहता। हमारे घरानों में खुदावन मैं अपनी उस बहन को माफ करना चाहती हूँ कोई नहीं कहता। हमारे घरानों में लोग सिर्फ मांगते हैं, लालच के जरिए मांगते हैं और कोई मोहब्बत का नाम नहीं लेता। हालांकि यस्सु क्या है? मोहब्बत है, और ईमान से हमारी जिंदगी में क्या होगी? मोहब्बत होगी। लेकिन मोहब्बत नहीं है और ईमान है, तभी मैंने अमाल को चुना, तभी मैंने अमाल को चुना कि अगर आप ये जाहिर करते हैं कि पादरी साहब हम दुआ करते हैं, अगर आप ये जाहिर करते हैं कि पादरी साहब हम कलाम भी पढ़ते हैं, अगर आप ये जाहिर करते हैं कि हम लोगों से कलाम की बातें शेयर करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप ऐसा करते होंगे। फिर उसके साथ अगर आप जाहिर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको अमाल की जरूरत है, फिर अमाल की जरूरत है। और अमाल क्या है? हमारे अमाल क्या है? मैं आपको हमारे अमाल बताता हूँ। शरीयत के अमाल की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम अपने अमाल की बात करेंगे। खुदावन यस्सु ने कहा कि तू खलवत में जा और पुशीदगी में अपने बाप से खलवत में बातें कर, वो तुझे पूरा अजर देगा। हम खलवत में भी खुदा के साथ हम कलाम। मैं आपको अमाल की बात बताता हूँ कि आप अमाल कैसे जरूर करते हैं। हमारे पास हर हफ्ते, मुझे 4 साल आप लोगों के साथ हो गए, 4 साल लगातार मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि क्या करें? वक्त पर इबादत करें। इतने तो किसी कौम के लोग ठीक नहीं है जितने हमारी कौम के लोग। हर इन 4 सालों में कम से कम, बहुत कम नहीं हो तो 5,000 से 10,000 हफ्ते गुजर चुके हैं। उन हफ्तों में मैं घर में विजिट करके भी मैं आपसे कहता हूँ कि खुदारा अपने अमाल दुरुस्त करें, इबादत पर वक्त लगाएं ताकि उसकी बरकत आपको मिले। फिर कलाम की बाबत में आपसे कहता रहता हूँ, खुदा का कलाम सुन। खुदावन यीशु कहता है जो सुनता है वो बरकत पाता है, जो सुनता है वो बरकत पाता है। और मैं फिर भी आपसे कहता हूँ जो कलाम आप सुनते हैं, जहाँ तक दूसरे लोगों को बताया तक करें ताकि खुदा का कलाम आगे बढ़े। और खुदा के कलाम में लिखा है जो खामोश रहेगा वो क्या कहेगा? अब देखें, बेसुकूनी है, घरानों में बेसुकूनी है कि नहीं? बोले तो बोलो बोलो, क्यों जी एल्डर साहब, है ना? अब देखिए घरों में बेसुकूनी है, घरों में बीमारी भी, छोटी सी बीमारी, जुकाम भी बीमारी है ना? कमी है सब कुछ हमारे पास, सब कुछ है, फिर भी कमी है। औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? बोलो बोलो, यही बात है। मैं आपको कहता हूँ कि ये तब होता है जब हम, अगर ईमान में मजबूत नहीं तो अमाल में तो हमें मजबूत होना चाहिए कि नहीं? हम वक्त पर आए, खुदा की इबादत करें और खुदा की ढेरों सारी बरकतें लेकर जाएं। ये वादा है कि जो मेरे नजदीक आएगा वो कभी भूखा नहीं सोएगा, जो मेरे मजमा में शरीक होगा वो प्यासा नहीं रहेगा, जो मेरे साथ होगा वो मोहब्बत से भरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा के हुजूर से बरकत नहीं, बरकत की कसरत है जो आप लोगों को मिलेगी। लेकिन आप सब बातों में अपने आप को कमजोर जाहिर करते हैं। खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे और नालों से तंग आ चुका हूँ। अब जो आप दुआएं कर रहे हैं, खुदावन यार कर दे, खुदावन सुबह कुछ नहीं खाता, शामी गोश्त दे दे, खुदा दे वास्ते दे दे, वो आपको नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो आपके आहो नाला से क्या है? तंग है। आप ना ही अमाल में दुरुस्त है, ना ही ईमान में दुरुस्त है, फिर भी आप मसीह हैं और बड़े बड़े दावे हैं,
کہ ہم مسیح میں دعا کرتے ہیں. آپ کسی کو ایک وقت کا چلتے ہوئے کسی شخص کو کھانا نہیں کھلا سکتے. آپ پانی بھی پلاتے ہیں تو پانی کی خواہش کرتے ہیں, میں نے پلایا تو بھی مجھے کھلا, میں نے کھلایا تو بھی مجھے کھلا. ہم ایسی خواہشوں میں پھنس چکے کہ ہم خدا کے لوگ نہیں. میرے عزیزوں, کلام مقدس حقیقی زندہ کلام ہے اور بابرکت ہے. میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ ایمان میں مضبوط نہیں ٹھہر رہے تو اپنے اعمال کو درست کر لیں, اپنے اعمال کے ذریعے خداوند کی خوشنودی حاصل کریں اور خداوند کے ایمان سے بھر جائیں. جب آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے اعمال کے ذریعے تو ایمان سے بھر جائیں گے اور ایمان سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کا گھرانہ بھی بچ جائے گا. پھر اس آو نالے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. پھر یسوع نے کیا کہا ایڈر صاحب, پھر یسوع نے کہا کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ سب کو گھر سے آئے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا. اے قادر مطلق عظیم پتا, لشکروں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں. تو بھلا ہے اور تیری سب تدبیر ہے. تو پشت در پشت ہمارے ساتھ, تیری برکت تیرے کلام کی برکت سے خداوند تیرے لوگ ایسے ذہنوں کو دلوں کو نرم رکھنا, دوستی میں رکھنا, تاکہ خداوند تیرا کلام دلوں پر چوٹ کرے. ہر ایک زندگی جو ایمان رکھتی ہے اعمال میں بھی درست ہو, جو اعمال رکھتی ہے ایمان میں بھی درست ہو. اپنے وعدے پورے کرنا خداوند, تیرے لوگوں کو گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے.